Hello everyone. So here is a big news for all of you. Most of you were waiting for this information. IFT forms are out. Indian Institute of Foreign Trade, one of the top B school of India to offer MBA in international business. Right guys, the forms for IFT are out. In this video, we'll be talking about the complete details about IFT, the selection process, the programs offered, the number of campuses of IFT, the placement, and the most important, the exam pattern, because IFT का खुद का अपना exam होने वाला है, right? So what is the exam pattern of IFT, and what are the cutoffs? So all important information about IFT will be discussed in this video, guys. So सबसे पहला important information, guys. Last date is 14th November 2022. Exam date is 18th December 2022. Now this date is very very important. You should just look at this date, guys. 18 December. That means you will be having only 3 weeks after CAT to appear for this paper, right? So should you be utilizing those 3 weeks only for IFT exam preparation? No. If you are going for IFT, if you're serious about IFT, now is the time. October and November month is a month that you have to use for your IFT exam preparation. How CAT exam preparation will help you in IFT, this is also something we'll be talking about. CAT का एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको IFT में थोड़ा ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट? यू गाइस, there are some specific section which are extra, some specific topics which you might have to study in addition to your CAT exam preparation for your IFT, guys, right? बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है आपका. CAT के एग्जाम की प्रिपरेशन ही आपको IFT के एग्जाम क्लियर करने में हेल्प कर सकती है, बट आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन उसको करना पड़ेगा, थोड़े कुछ एडिशनल टॉपिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. सो विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स, राइट? फॉर्म का फीस बच्चों 2500 रुपीज़ है. जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है 1250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा. दे आर 3 कैंपसेज ऑफ IFT, गाइस. IFT के 3 कैंपसेज हैं. IFT, one of the campuses in Delhi. Then we have one campus in Kolkata. There is another third campus in Kakinada in Andhra Pradesh. That's a new campus, right? I will strongly recommend for these 2 campuses. That's a new campus, IFT Kakinada, if you want to go for it. IFT Delhi का campus जो है 21.77 लाख है, और कोलकाता का campus का फीस जो है 20.97 लाख रुपीज़ है, right? But it's totally worth it, right? If you're investing this much money here, if you can get yourself into IFT, you should not be thinking about this, because you will definitely get this money back within 1 or 2 years, guys, right? Talking about the programs of MBA of IFT, guys, बहुत बच्चों को confusion होता है कि MBA IFT is what means. You will be going for some foreign placements, right? Will you be getting placements outside of India? No. MBA in IB is the program that they offered. MBA in international business. Now, international, your MBA, this program will be called as MBA in International Business. That means you will be studying same general subjects or that any MBA general candidate will be studying. But here, in addition to the general MBA programs like marketing and finance, you'll also be studying some international business related subjects like international marketing. For example, if you're studying normal marketing, right? But in addition to that, there will be some additional subjects in international business in IFT you will be studying, which will be called as international marketing or international finance. Basically, the companies which have its operations in different countries, they always prefer the students who have an exposure to the global management, guys, right? So basically, you will be training yourself for the international management, guys, right? तो इनफैक्ट आपको यहाँ पे जनरल MBA प्रोग्राम के एडिशन में कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड होंगे, राइट? सो मार्केटिंग में अगर आप जा रहे हो तो आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग भी पढ़ने को मिलेगा. फाइनेंस अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको फाइनेंस, नॉर्मल फाइनेंस के साथ साथ आपको इंटरनेशनल फाइनेंस एक एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा. सो विल बी गेटिंग सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हियर, राइट? जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम को योर प्रोग्राम विल बी कॉल्ड एज MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, गाइस, राइट? सो वेरी वेरी amazing concept, right? So if you're looking for IFT, you should not be thinking about it. Definitely you should go for it, right? So one of the top B school, guys. Talking about the exam pattern, guys. Exam का pattern इसका अलग है. CAT का score इसमें accept नहीं कर रहे हैं ये, right? So they will be going for a separate exam. There are 4 sections in IFT, guys: RC and verbal ability, logical reasoning and data interpretation, quant and GK. Okay, so ये तीनों topic तो आप already CAT के एग्जाम में स्टडी कर रहे हो, तो कैसे ये डिफरेंट है, राइट? थोड़ा आपको मैं इसमें आइडिया देता हूँ. लुक एट इट, गाइस, राइट? द टोटल टाइम इज 120 मिनट. आई पर्सनली बिलीव IFT इज ऑल अबाउट स्पीड. आपको क्वेश्चन तो सोल्व करना है, बट स्पीड के साथ सोल्व करना है, बिकॉज टाइम बहुत कम है, सेक्शन बहुत ज़्यादा है, एंड देयर इज वन एडिशनल कंडीशन दैट यू हैव टू सेटिस्फाई टू क्लियर द IFTs कि आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा.
इट्स नॉट दैट कि आपका ओवरऑल परसेंटाइल अगर 99 प्लस आता है तो यू बी गेटिंग द IFT कॉल. अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं है देन यू विल नॉट गेट द कॉल इवन इफ योर ओवरऑल कट ऑफ इज क्लियर, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज very difficult for students to do all the 4 section, because चारों सेक्शन में से आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा. इट्स नॉट दैट कि आप अपने स्ट्रेंथ एरिया से, लेट्स से कि किसी का वर्बल एबिलिटी स्ट्रेंथ है और क्वांट स्ट्रेंथ है, ये दोनों टॉपिक में से आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर दो. ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? आपको LRDI के क्वेश्चंस भी सोल्व करने पड़ेंगे और GK भी आपको सोल्व करना पड़ेगा. बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन वाइज, राइट, हाई वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज RC एंड वर्बल एबिलिटी का है. तो जिन बच्चों का वर्बल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा. 35 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मार्क्स क्वेश्चन वुड बी 3. टोटल मैक्सिमम मार्क्स आर 105. LRDI के केस में 30 क्वेश्चन, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 90 मार्क्स का हो गया ये सेक्शन. क्वांट इज 75 मार्क्स का. GK का वेटेज देखो बहुत कम है, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का है, 30 मार्क्स आएगा. दैट मीन्स GK इज समथिंग दैट विल नॉट प्ले अ बिगर रोल इन योर ओवरऑल कट ऑफ. GK का आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है. बहुत बच्चे इस वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार GK कहाँ से पढ़े, GK कैसे करें, राइट? आई विल मेक अ सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो गाइस कि एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, राइट, ऑन द चैनल वेरी सुन, राइट? उस पर हम वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक में IFT में क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में कौन कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, DILR में किस तरह के DI और LR आपको करने चाहिए. तो वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए सेपरेट अपलोड कर दूंगा, राइट? एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका ये वाला सेक्शन ऑलरेडी कैट में प्रिपेयर हो रहा है. LRDI अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कैट में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशनल टॉपिक आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे. थोड़े रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, वो डिटेल में आपको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में, स्ट्रैटेजी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट वही है. इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक, प्रोबेबिलिटी, PNC बहुत ज़्यादा आता है, राइट? लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा हाई रहता है क्वेश्चन का, राइट? बट 99% सिलेबस वही है जो आपका कैट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो. GK में भी, राइट, करंट अफेयर्स हो गए और इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, राइट? ये सब रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट? वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनके करंट चीफ, ये सब क्वेश्चंस आपको हैंडल करने हैं. तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स. लास्ट 5 ईयर्स का हम ट्रेंड देखेंगे कि क्वांट में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, DLR में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो स्ट्रैटेजी वीडियो में सब डिस्कस हो जाएगा. वन सेक्शन दैट यू एडिशनली नीड टू प्रिपेयर, जो आपको शायद IFT में पढ़ना पड़ेगा, वो GK का है. और इसमें कुछ थोड़े बहुत जो भी चेंजेस हैं वो हम सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियो में बात कर लेंगे. बट ये एग्जाम का पैटर्न है, 120 मिनट्स है, 300 मार्क्स का पेपर, 110 क्वेश्चन होंगे. कट ऑफ की अगर हम बात करें, राइट, सेक्शनल कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं रहता है, राइट? इफ यू टॉक अबाउट यू सी द RC एंड वर्बल एबिलिटी का सेक्शनल कट ऑफ इज ओनली 19. दैट मीन्स अगर आप 7 के राउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगा. द प्रॉब्लम इज कि आपको हर सेक्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. आप सारा टाइम एक सेक्शन में नहीं लगा सकते. लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 13 मार्क्स का ही कट ऑफ है. दैट मीन्स 4-5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस विल टेक यू देयर, राइट? क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कट ऑफ इज जस्ट 8 मार्क. फॉर जनरल कैंडिडेट कट ऑफ इज जस्ट 8 मार्क्स. 3 क्वेश्चंस इन क्वांट एंड यू आर थ्रू विद द कट ऑफ. जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ इज अराउंड 5.5 मार्क्स एज पर द लास्ट ईयर. इस साल थोड़ा ज्यादा भी जा सकता है. 5.5 इज ओनली 3 और 4 क्वेश्चन गाइस. 4 क्वेश्चन सही किए एंड दैट्स इट. सो सीधे बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना है आपको. जनरल GK आ रहा है IFT के अंदर, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, राइट? सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके आप बहुत ईजिली इस पेपर को प्रिपेयर कर सकते हो. आपको सिर्फ GK में सेक्शन कट ऑफ ही तो करना है, राइट? इससे आपका ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हो सकता है, बिकॉज पर क्वेश्चन मार्क्स बहुत कम है, राइट? और ओवरऑल वेटेज भी बहुत कम है, राइट? मेजर आपको RC, वर्बल एबिलिटी, क्वांट, LRDI, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन करवाने वाले हैं, राइट? लास्ट ईयर 2021 का IFT का पेपर क्वांट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर था. लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आई वुड से कि उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैट के क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी से काफ़ी हाई था बच्चों, राइट? सो ये सारी डिटेल में क्या ट्रेंड रहा है लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में हम सेपरेट वीडियोस में बात करेंगे. बट एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के लिए दे दिया. कैट के एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ आपका ये एग्जाम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो ही रहा है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एडिशनल टॉपिक जो भी पढ़ने पड़ेंगे वो आपको आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज फॉर दोज टॉपिक्स, राइट? और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. Selection criteria guys, right? Let's talk about the selection criteria. Does your profile fall into this category guys, right? क्या आपकी करंट प्रोफाइल पे आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? Look at it guys. सिलेक्शन क्राइटेरिया में बात करें तो जो फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग है जो एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पे है,
IFT का स्कोर राइट में 73% वेट है, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई वेटेज गाइस. दैट मीन्स आपके लो एकेडमिक्स या वर्क एक्सपीरियंस would not be a major factor when it comes to the shortlisting guys, because 73% weightage is to your score of IFT. अगर आपने IFT में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. और सेकेंडली इसमें ग्रेजुएशन को कोई वेटेज नहीं है, ग्रेजुएशन के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है, जो कि जनरली बच्चे ग्रेजुएशन के मार्क्स में बहुत कम मार्क्स लेके आते हैं. 10th में 10% वेटेज है, 12th में 10% का 10 वेटेज है राइट. ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को कोई वेटेज नहीं है. अकेडमिक डाइवर्सिटी में नॉन इंजीनियर को एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है 5 मार्क्स का राइट. इंजीनियर्स को कोई नहीं है. और मेल जेंडर डाइवर्सिटी में मेल 0 और फीमेल को एडिशनल 2 मार्क्स मिल रहे हैं. तो जो फीमेल नॉन इंजीनियर है उसको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और 5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे. तो 7 मार्क का स्ट्रेट अवे बेनिफिट है टू दोज फीमेल हु आर नॉट इंजीनियर, हु आर नॉन इंजीनियर एंड राइट फीमेल राइट. सो 7 मार्क्स का डायरेक्ट बेनिफिट आपको यहाँ मिल रहा है बच्चों राइट. सो अगर आपके 10th 12th में कुछ कम मार्क्स हैं तो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा. इंजीनियरिंग के लिए 0 है और मेल के लिए भी 0 हो गया. बट 10th 12th के मार्क्स अगर आपके डिसेंट है और IFT में अच्छा स्कोर करो तो बहुत बहुत चांसेस है, अच्छे चांसेस है कि आपको IFT से कॉल डेफिनेटली आ जाएगा राइट. और सेकेंडली अगर यहाँ पे बहुत वीक हो राइट, 10th 12th में मार्क्स कम है, यहाँ अगर आप अच्छा स्कोर कर लो बच्चों राइट IFT में, तो उसके बेसिस पे भी स्कोर आने के बहुत चांसेस है, बिकॉज 73% इज ह्यूज वेटेज गाइस राइट. नाउ फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है स्टेज 2 का, शॉर्टलिस्टिंग के बाद यू विल बी गोइंग फॉर वैट GDPI राइट. फाइनल स्कोर में भी IFT का स्कोर का वेटेज इज क्वाइट हाई गाइस राइट. स्कोर में फिर से 45% का वेटेज है. जब आप फाइनल वैट GDPI के लिए जाओगे उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, IFT के स्कोर को 45 का वेटेज, वैट को 10 वेटेज 10%, GD को 10%, PI को 20% राइट. सो यू सी दैट सेपरेट वेटेज स्पेसिफिकली मेंशन है. आप ऐसे में अच्छा कर लो, GD में अच्छा कर लो, PI में अच्छा कर लो, तो 40 मार्क्स का वेटेज यहीं पे ही है. दैट मीन्स अल्टीमेटली 85% का वेटेज ऐसा है IFT में जिसको आप अभी कंट्रोल कर सकते हो. दैट क्योंकि 10th 12th के मार्क्स तो अब जो आपके आ चुके हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है राइट. बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे 10th 12th के मार्क्स कम है, क्या करें. यहाँ पे IFT के पेपर में देखो 85% वेटेज इज स्टिल इन योर कंट्रोल गाइज राइट. फिर जेंडर डाइवर्सिटी फीमेल स्ट्रेट अवे 2 नंबर, यहाँ पे फिर से फीमेल को 2 नंबर मिल रहा है. एकेडमिक डाइवर्सिटी में भी 10th का 4, 12th का 4, 10th 12th का वेटेज रहा है, बट बहुत कम है बच्चों, सिर्फ 4% वेटेज 10th को, 12th को भी 4% राइट. फिर वर्क एक्सपीरियंस को 3 और नॉन इंजीनियर के 2 मार्क्स हो राइट. यहाँ इंजीनियर के 0 और एकेडमिक डाइवर्सिटी पे नॉन इंजीनियर के भी आपको 2 नंबर मिल रहे हैं. सो आउट ऑफ 100 राइट, यहाँ पे आपको 2 मार्क्स नॉन इंजीनियर के मिल जाएंगे और फीमेल होने के भी 2 मार्क्स यहाँ पे हैं. और 10th 12th का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है राइट. ठीक है. So these are the benefits you will be having guys right. This is the selection process. So I would say that guys without having, अगर आपके 10th 12th के बहुत ज़्यादा मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, डिसेंट है, मॉडरेट हैं, तो दिस इज़ द कॉलेज दैट यू कैन डेफिनेटली गेट योर सेल्फ इनटू. अगर आप पेपर में अच्छा कर लो और वैट GDPI में अच्छा कर लो बच्चों राइट. Now placement wise, let me just give you a quick idea about the placements also guys right. Average package 25.16 lakh का है per annum का, highest package 46.5 lakh per annum गया है. Our top recruiters हैं Accenture, Deloitte, one of my student who was there in IFT right, he's currently working with Deloitte right, McKinsey right, so Asian Paints right, Dabur, टाटा स्टील राइट, TCS, बजाज. सो टॉप सारी कंपनीज आपको IFT में देखने को मिलेंगी बच्चों. सो प्लेसमेंट वाइज कोई फाइट नहीं है. इफ यू कैन जस्ट गेट योर सेल्फ इन टू IFT यू आर डेफिनेटली गेटिंग प्लेस देयर फॉर श्योर राइट. 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है. प्रोफाइल वाइज वहाँ पे देखें, बैच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें 32% स्टूडेंट्स इस टाइम पे वहाँ पे फ्रेशर है बच्चों, तो बहुत अच्छा परसेंटेज है ये फ्रेशर्स का. एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर 68%. अकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करें, इंजीनियर 80%, नॉन इंजीनियर 20%. सो नॉन इंजीनियर को डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना चाहिए, बिकॉज नॉन इंजीनियर के आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बच्चों राइट. तो जेंडर डाइवर्सिटी में मेल 75% है, फीमेल 25. इसी वजह से फीमेल को सेपरेट मार्क्स का भी है, जेंडर डाइवर्सिटी के एक्स्ट्रा मार्क्स भी है, तो फीमेल्स को तो डेफिनेटली IFT अप्लाई करना चाहिए गाइस. सर दैट्स द कंप्लीट डिटेल अबाउट IFT गाइस. अ सेपरेट वीडियोज ऑन द स्ट्रैटेजी अबाउट ऑन IFT, हाउ यू शुड बी क्लियरिंग द IFT पेपर. आई विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स. एंड ऑल्सो जो एक्स्ट्रा IFT का सिलेबस है उसका प्रिपरेशन आपका ये चैनल पे हो जाएगा. आई विल बी टेकिंग सम लाइव सेशन फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर IFT एग्जाम प्रिपरेशन गाइस. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक्स अ लॉट.